Now we'll understand about the vacation of seats in both the parliament and the state legislature. So, what are the conditions in which the vacation of seats can happen? And then, further moving on to that, we'll build upon the topic of the disqualification of members also in the coming lecture. But here, when we try to understand about the vacation of seats, see, it comes under the disqualification of members only because one major point of vacation is disqualification. How and what, we'll just see here. So, Article 101 talks about the vacation of seats. So, this is in the context of Parliament. And similarly, Article 190 talks about the vacation of seats in the case of the state legislature. Now, you will see that there are many clauses here: clause 1, clause 2, clause 3, and clause 4, right? And then there are sub clauses in between. Now, अब ये जो चार clauses हैं, ये आपको अलग अलग criteria बताती है that how the vacation of seats can happen. The first criteria that you have to remember is, so I will be writing alongside also so that you do not face a problem. The first criteria is of double membership. इसके लिए दो कंडीशंस हैं, एक तो क्लॉज 1 वाली और एक क्लॉज 2 वाली, ठीक है. द सेम गोज इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो. So this I'll just quickly read it out for you, and whatever differences would be there I'll specifically point out, but majorly we'll be seeing this because most of the pointers are related to each other. So for double membership you have two provisions, two clauses telling that no person shall be a member of both houses of parliament, and provisions shall be made by parliament by law for the vacation by a person who is chosen a member of both houses of his seat in one house or the other. Now, do not get confused, it's not that complicated as it seems to be. We'll do it simply. So, in the first criteria of double membership, what it is being said is that no double membership is allowed of both the houses. Now the same thing goes for पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कि इनके अगर यहाँ पर एक हाउस है तो ओके, अदरवाइज दोनों हाउस है तो भी ठीक है, इट इज़ एप्लीकेबल दैट अ पर्सन कैन नॉट बिकम द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस. ठीक है, दिस इज द सिंपल प्रोविजन. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ दिस हैपन्स, द थिंग इज दैट इट इज़ नॉट अलाउड, बट लेट्स से इफ वन पर्सन इज चोजन अ मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस, ठीक है, उस केस में क्या होगा. सो if it happens, then parliament or state legislature will have to make provisions for vacation of seats. ठीक है, तो वो क्या करेंगे, प्रोविजन बनाएंगे दैट सीट वेकेंट हो जाना चाहिए in either house. So the person will be given the choice that if you are elected the member of both the houses, let's say Lok Sabha and Rajya Sabha and Legislative Assembly and Council, ठीक है, तो अगर और यहाँ पे हम मिक्स नहीं कर रहे हैं, देर आर डिफरेंट डिफरेंट केसेस ऑफ डबल मेंबरशिप. हियर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इधर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के मेंबर बन जाएं या स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेस के मेंबर बन जाएं, तब क्या होगा. ठीक है, सो इफ दैट विल हैपन, द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर विल मेक प्रोविजंस एंड वहाँ पे वो बात करेंगे कि हम सीट्स वेकेंट कराएंगे, कोई भी एक सीट वेकेंट हो जाएगी in either of the house. Now that the parliament or the legislature has been asked to make provisions about it, so what the parliament did, जो RPA है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951, वहाँ पे कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं कि इफ़ दिस हैपन्स देन हाउ द वैकेंसी ऑफ द सीट्स विल टेक प्लेस. ठीक है, तो अब यहाँ पे तीन कंडीशंस में क्या है, दैट इफ़ इलेक्शन हैज़ हैपेंड ऑफ दैट पर्सन फॉर बोथ द हाउस, देन उस पर्सन को अपनी चॉइस बतानी होगी. ठीक है, टू द हाउस कि आप किस हाउस में मेंबर रहना चाहते हैं विद इन 10 days. If the person does not give the choice that I want to stay in Rajya Sabha or Lok Sabha or whatever is the case, then Rajya Sabha seat becomes vacant.
ठीक है, तो अगर नहीं 10 दिन के अंदर बताया तो राज्यसभा की सीट जो है वो वेकेंट हो जाती है. नाउ इफ देयर इज अ सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस, सी डिफरेंट कंडीशंस. पहला कंडीशन क्या है और पहला केस क्या है, एक पर्सन का इलेक्शन दोनों हाउस में हुआ. द पर्सन वॉज नॉट इलेक्टेड एवर, आई मीन प्रीवियसली इन द हाउस, नॉट एवर इज नॉट द राइट वर्ड, बट till now let's say the person was not elected, now the person has got elected in both the houses, so this will follow. But if the person is a sitting member of one house, already a member of one house, okay, and then chosen for the other house also, so if sitting member of one house and then gets elected to other, then ये वाली जो फर्स्ट हाउस की सीट है वो वेकेंट हो जाएगी. बिकॉज लॉजिक है ना, फर्स्ट हाउस की सीट क्यों वेकेंट हो जाएगी इस केस में, बिकॉज इफ यू वर ऑलरेडी अ सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस एंड देन you have fought the election and elected to the other house, which means you're not interested in the first house, so your first house seat will be vacant. But here there was no clarity because you got elected at the same time to both the houses, let's say hypothetically, ठीक है, तो फिर now you will have to give choice that whatever house you're choosing to continue with, and if you do not choose तो वो राज्यसभा की सीट को वेकेंट करवा देंगे, क्योंकि लोकसभा को वैसे भी हम लाइक पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव की तरह मतलब देख रहे हैं ना, यहाँ पे तो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज़ मोर अबाउट पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन, तो राज्यसभा वाली सीट को वेकेंट करा देते हैं. थर्ड केस क्या होता है कि सेम हाउस के अंदर अगर आपका इलेक्शन हो जा रहा है, सो इफ इलेक्टेड टू 2 सीट्स इन वन हाउस, सेम हाउस में 2 सीट पर आपका इलेक्शन हो, बिकॉज यू कैन फाइट इलेक्शन फ्रॉम मल्टीपल सीट्स ऑल्सो. अगर उस तरीके से आपका इलेक्शन हो जाता है देन यू विल हैव टू चूज वन, ठीक है, एंड इफ यू आर नॉट डूइंग इट ऑन टाइम देन योर बोथ सीट्स विल बी वेकेंट, क्योंकि यहाँ पे कोई मजाक नहीं करना है. तो 2 सीट्स तो आपको मिलेगी तो नहीं, यहाँ पे तो कोई चॉइस ही नहीं है. सो इफ़ यू डू नॉट चूज वन बाई योर सेल्फ, आपकी दोनों सीट जो है वो ख़त्म हो जाएगी, वेकेंट हो जाएगी, ठीक है. सो दीज आर द 3 कंडीशंस दैट हैपन. दिस इज गिवन इन क्लॉज 1. So no person shall be a member of both the houses, and if that happen, the provision will be made by parliament for the vacation by a person who is chosen a member of both houses, and which seat will be vacant, the one which is not chosen by the person, so one house or the other. और उस केस में चूंकि पार्लियामेंट को अधिकार दिया गया प्रोविजंस बनाने का, तो पार्लियामेंट ने आरपीए के थ्रू ये प्रोविजन सामने रखे. स्टेट लेजिस्लेचर में सेम चीज़ है, no person shall be a member of both house of the state legislature and they can make by law कि कौन से सीट को वेकेंट करना है, ठीक है. सो द सेम थिंग इज देयर, वी हैव डन दिस प्रोविजन, दिस इज डन and this is done. Now we see the second one. Second clause is also about double membership. So second clause में जो double membership की बात की जाती है वो थोड़ा सा different है. जाहिर सी बात है, if they are giving different clauses तो no double membership पार्लियामेंट के केस में और स्टेट लेजिस्लेचर के केस में यहाँ पे क्राइटेरिया अलग है थोड़ा, ठीक है. अब अलग क्या है, फर्स्टली आई गिव यू इन राइटिंग देन आई रीड दैट आउट फॉर यू. पार्लियामेंट के केस में क्या बोल रहे हैं कि बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर का सेम टाइम पर, अभी तक क्या हो रहा था, वी वर टॉकिंग अबाउट ईदर पार्लियामेंट और ईदर स्टेट लेजिस्लेचर. सो इन दैट वी वर टॉकिंग अबाउट द 2 हाउसेस, है ना, 2 हाउसेस विद इन पार्लियामेंट और 2 हाउसेस विद इन स्टेट लेजिस्लेचर. नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आप एक ही टाइम पर मेंबर नहीं बन सकते हैं. अच्छा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, सो if you have become at the same time member of both parliament also and let's say assembly or council also, then in this case what will happen, your seat in parliament becomes vacant if state legislature seat not resigned within period specified in rules made by president.
विच एक्चुअली इज़ 14 days. ठीक है, तो इन्होंने एक रूल, मतलब प्रेसिडेंट ने रूल बनाया, प्रोहिबिशन ऑफ साइमल्टेनियस मेंबरशिप रूल्स 1950. उसके अकॉर्डिंग 14 दिन का टाइम दिया गया है, दैट विद इन 14 days इफ़ यू डू नॉट योर सेल्फ रिजाइन फ्रॉम योर स्टेट लेजिस्लेचर सीट, देन योर पार्लियामेंट का सीट विल बी कंसिडर्ड वेकेंट इफ़ यू हैव बीन इलेक्टेड द मेंबर ऑफ बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एट द सेम टाइम. अब स्टेट लेजिस्लेचर के केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि सेम प्रोविजन तो रखने का कोई पॉइंट नहीं है, वो तो ऑलरेडी है. स्टेट के केस में क्या बोला जाता है कि यू आर नॉट अलाउड टू बी अ मेंबर ऑफ 2 or more state legislature at same time. ठीक है, आप अलग अलग स्टेट से मेंबर नहीं बनेंगे, कोई एक ही स्टेट में आप चुने जाएंगे. एंड देन इफ समथिंग लाइक दिस हैपन्स, इफ सच डुअल मेंबरशिप हैपन्स, देन द सीट्स ऑफ ऑल स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ ऑल स्टेट्स, ठीक है, तो जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर से आप चुने गए, सारे स्टेट लेजिस्लेचर की जो सीट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, वो वेकेंट हो जाएंगी इफ़ नो प्रीवियस रेजिग्नेशन ऑफ सीट्स डन एक्सेप्ट वन. सेम पीरियड की बात है, विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, कि एक को छोड़ के अगर आपने बाकी हर जगह से रिज़ाइन खुद से नहीं किया तो आपकी सारी की सारी सीट चली जाएगी. हियर इफ़ यू डू नॉट रिज़ाइन फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेचर सीट, योर पार्लियामेंट्री सीट बिकम्स वेकेंट. ठीक है, I hope now the double membership point is clear. We'll just quickly read it out. It is given in this second clause. No person shall be a member both of parliament or state legislature. And if a person is chosen such a member, then at the expiration of such period specified in the rules made by president. तो हमने अभी बात करी कि प्रेसिडेंट ने रूल बनाया, प्रोहिबिशन ऑफ साइमल्टेनियस मेंबरशिप रूल्स 1950, जिसके हिसाब से 14 दिन का टाइम दिया गया. ठीक है, सो द पीरियड इज स्पेसिफाइड इन दैट रूल्स. द पर्सन सीट इन पार्लियामेंट विल बी वेकेंट unless he has already previously resigned from the seat in the legislature, state legislature. ठीक है, we have done this. It should now be clear to you. सेम अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर के केस में बात करें तो क्या बोला जा रहा है कि नो पर्सन विल बी अलाउड टू बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ 2 or more स्टेट्स. ठीक है, वो सब फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है, तो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के आप मेंबर नहीं बन सकते हैं. इफ़ समबडी बिकम्स अ मेंबर, देन जब वो पीरियड एक्सपायर कर जाएगा जो प्रेसिडेंट रूल में दिया हुआ है टाइम, मतलब प्रेसिडेंट द्वारा बनाए गए रूल में दिया गया है, देन दैट पर्सन सीट इन द लेजिस्लेचर ऑफ ऑल सच स्टेट्स विल बिकम वेकेंट अनलेस उन्होंने ऑलरेडी अपनी सीट्स को पहले से रिज़ाइन नहीं करा है, ऑफ ऑल द सीट्स एक्सेप्ट वन. बट वन मीन्स एक्सेप्ट वन, जहाँ पर भी आप रहना चाहो उसको चुन लो, बाकी को खुद से रिज़ाइन कर दो. नहीं करोगे तो सारी की सारी सीट चली जाएगी. So the first criteria for the vacation of seats is about double membership. Double membership also in different context. Firstly, both the houses of either parliament or state legislature. Then double membership in the case of either parliament, state legislature at one point of time or multiple state legislatures at one point of time. ठीक है. The third criteria for the vacation of seats is about the disqualification of members. डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया क्या होते हैं वो हमें अभी नहीं देखना है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट लेक्चर. बस आपको इतना जानना है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स. कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ क्लॉज 3A में साफ साफ ये चीज़ कह रही है कि जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं इन कॉन्स्टिट्यूशन related to disqualification, because it is given at different places in different context. ठीक है, so whatever provisions are given in the constitution about disqualification of members, and that includes anti defection also, उन सब के अंदर membership जो है वो, क्योंकि member disqualify हो जाएंगे तो seat vacant हो जाएगा. I'll just quickly read out to you so that it becomes clear. If a member of either house of parliament becomes subject to any of the disqualification,
mentioned in clause 1 or 2 of article 102. ठीक है, तो ये 101 है, 102 is on disqualification which we'll do in the next lecture. तो अब क्राइटेरिया तब देख लेना, अभी जस्ट अंडरस्टैंड कि उसके क्लॉजेज में जो भी क्राइटेरिया दिया गया है अगर वो फुलफिल हो जाता है देन द सीट विल बिकम वेकेंट. ठीक है, तो सेम चीज़ जो है यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर आपका स्टेट लेजिस्लेचर के केस में भी दिया हुआ है दैट इफ अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बिकम सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन इन दीज क्लॉजेस. ठीक है, देन द सीट विल बिकम वेकेंट. तो ये तो हो गया. तो इसका क्या क्राइटेरिया है, बिकॉज वी विल बी डूइंग दिस एनीवे सेपरेटली सो देयर इज नो पॉइंट डूइंग इट राइट नाउ. अनदर क्राइटेरिया जो दिया गया है वैकेंसी ऑफ सीट्स का वो है आपका रेजिग्नेशन. तो अगर मेंबर खुद से रिज़ाइन कर दें तो ऑफकोर्स उनकी सीट वेकेंट हो जाएगी. ठीक है, अब अगर रिज़ाइन करना है तो आपको किसी को लिखना पड़ेगा. सो मेंबर्स विल राइट टू, अगर लोअर हाउस है तो स्पीकर, सो लोकसभा या असेंबली है तो स्पीकर, अगर अपर हाउस है राज्यसभा या काउंसिल है देन टू द चेयरमैन. बट हियर इज अ क्राइटेरिया. द क्राइटेरिया इज दैट these people, the officers, presiding officers, need to accept this resignation. So acceptance is needed, because if they at any point of time feel that, you know, let's say they have done it under some pressure or something and they're not satisfied that it is voluntary or any genuine, ठीक है, then they will not accept the resignation. And this is written in the constitution also. So it's not that you have just written a resignation letter and you have got free from that work. No. Until and unless your resignation is accepted by speaker or a chairman, till then that is not considered into acceptance. We'll just read out the constitutional provision. It says, if a member of either house of parliament resigns his seat by writing under his hand, either addressed to the chairman or speaker, his resignation is accepted, then his seat will become vacant. ठीक है, the same thing is given in this case कि रेजिग्नेशन होगा स्पीकर या चेयरमैन को और जब एक्सेप्ट हो जाएगा तभी वेकेंट होगा. उसके बाद जो एक चीज़ लिखी गई है दैट इज़ ऑल्सो सेम फॉर बोथ ऑफ दिस, और वो क्या लिखा गया है दैट इन द केस ऑफ एनी रेजिग्नेशन रिफर्ड इन दिस क्लॉज, if from information received or otherwise, so if the speaker or chairman receives any information or otherwise also they feel or they make any inquiry and they think fit, that the chairman of the speaker is thinking fit, that they are satisfied that such resignation is not voluntary or genuine, then उसको वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, दे विल नॉट एक्सेप्ट दैट रेजिग्नेशन. ठीक है, चलिए लास्ट जो कंडीशन दी गई है वो क्या दिया गया है, वो दिया गया है एब्सेंस का. तो हमने डबल मेंबरशिप देख लिया, हमने डिस्क्वालिफिकेशन, रेजिग्नेशन देख लिया. एक क्राइटेरिया और जो दिया गया है वो दिया गया है एब्सेंस का. सो इफ द मेंबर्स आर एब्सेंस फ्रॉम ऑल मीटिंग्स ऑफ हाउस फॉर 6 days, ठीक है, ऑफ कोर्स विदाउट द परमिशन. अगर परमिशन है देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग. इफ़ विदाउट परमिशन फॉर 6 consecutive days द मेंबर इज एब्सेंट, तो उनकी सीट जो है वो वेकेंट हो जाएगी. हाउस विल डिक्लेयर vacant, that the seat is vacant. But in 6 days there are a few exceptions. For example, जब हाउस प्रोरोग्ड है, अब आपको ये सब का मतलब पता है, ठीक है, या फिर 4 days का कॉन्जिक्यूटिव एडजर्नमेंट है, तो फिर वो 6 days नहीं काउंट होंगे. जब हाउस बिल्कुल सेशन में है, सब कुछ चल रहा है, कोई गैप नहीं है बीच में, तब अगर 6 दिन के लिए कंटिन्यूसली एब्सेंट है देन हाउस विल डिक्लेयर द सीट टू बी वेकेंट. So reading the last one, if for a period of 6, sorry, I just said, how did I just do this mistake? I'm very sorry. 60 days. So yeah, if for a period of 60 days the member is without permission absent from all the meetings, then vacant declare किया जाएगा. And in computing the period of 60 days, जो भी period होगा उसमें हाउस प्रोरोग है अगर तो वो नहीं काउंट होगा, या फिर 4 consecutive days के लिए अगर हाउस एडजर्न्ड है तो वो नहीं काउंट होगा. आई अपोलोजाइज फॉर जस्ट सेइंग इट 6 continuously, it is actually 60 days. But the same thing goes for the state legislature. So you have seen all the criteria here.
and just quickly see that the same thing is given here. ठीक है, सो 60 days के लिए विदाउट परमिशन नहीं जा सकते, और अगर जा रहे हैं तो फिर आपकी सीट वेकेंट हो जाएगी. देयर आर एक्सेप्शंस अबाउट प्रोरोग और एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस. अपार्ट फ्रॉम दीज कंडीशंस देयर आर सम अदर कंडीशंस एक्स्ट्रा जो कि इस आर्टिकल में नहीं दिया गया है, बट देयर आर सिचुएशंस जो हमने अलग अलग जगह पे पढ़े हैं, वो भी हैं अदर केसेस ऑफ वैकेंसी. आपको पढ़ के खुद ही समझ आ जाएगा, हमने पढ़ा हुआ है ये सब कुछ. इफ इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द कोर्ट, ऑब्वियस है, अगर कोर्ट ने किसी इंसान के इलेक्शन को डिक्लेयर कर दिया है कि वो वॉइड है, ठीक है, इलेक्शन में कुछ गड़बड़ी थी या वॉट एवर, तो सीट वेकेंट हो जाएगी. किसी इंसान को हाउस से निकाल दिया जाए, एक्सपेल्ड बाय हाउस. इफ सम मेंबर गेट्स इलेक्टेड टू ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ऑब्वियस है, तो वो मेंबर तो नहीं रहेंगे. या फिर अपॉइंटमेंट टू ऑफिस ऑफ गवर्नर, then also vacancy will take place. ठीक है, so we have built upon these all pointers related to the vacancy. Now in the next lecture we'll focus only on the disqualification of members, that how, what are the criteria for the disqualification of membership, and it is also done in greater detail. So do not think whatever just looks smaller here, like a lot of things are to be done additionally. So I'll see you guys there. Thank you so much. Bye bye.